Welcome students of the class plus 2 in physics class. In the last video I told you about the reflection of the light. But now come to the refraction of light. So what is refraction? ये समझने के लिए let's see the common example in our daily life. If you see across the window pane, तो विंडो पैन के बाहर अगर आपको कोई ट्रीज या कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं तो अगर विंडो पैन थिक है तो आपको वो ट्रीज या ऑब्जेक्ट थोड़े से अपनी जगह से डिस्प्लेस दिखाई देंगे. एंड सिमिलरली इफ वी फिल द बकेट विद वाटर तो आपको बकेट शैलोअर दिखाई देगी, कम गहरी दिखाई देगी. तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक्चुअली व्हेनेवर वी सी एनी ऑब्जेक्ट तो दैट ऑब्जेक्ट वी कैन सी only when the light ray from that object starts and come to our eyes. अब ट्री कैसे दिख रहा है हमें बाहर से? तो ट्री जो दिख रहा है, ट्री से चलने वाली रे हमारी आईज तक पहुंच रही है विंडो पैन में से होकर, ग्लास में से होकर. और बकेट हमें का बॉटम हमें कैसे दिख रहा है? वहां से चलने वाली रे हमारी आईज तक पहुंच रही है वाटर में से होकर. तो लाइट रे जब ट्री से चल रही है, पहले एयर से ग्लास में आई, ग्लास से फिर दोबारा से एयर में आई और हमारी आईज तक पहुंची. तो एक्चुअली व्हेनेवर द लाइट रे चेंजेस द मीडियम, इट्स स्पीड चेंजेस एंड दैट्स व्हाई इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ. इट चेंजेस इट्स पाथ. दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन. तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? इट्स द फिनोमिना ऑफ changing the path of the light when it changes the medium. So let's take the example. तो this is the glass slab. Glass slab ये आपकी एक रे इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर at the point L. L पॉइंट पर हमने क्या ड्रॉ किया है? नॉर्मल. दिस रे इज इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस एट L द लाइट जो है इट चेंजेस द मीडियम. एयर से कहाँ आ रही है? ग्लास में. तो नेचुरल है इट विल बेंड फ्रॉम इट्स पाथ. इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब नॉर्मल और ये दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. एंड रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट भी होगा. एंड दिस रिफ्रैक्टेड रे again at the point M changes the medium. Naturally again it will bend from its path and this ray emerges out along this path. It bends away from the normal when the light ray goes from glass to air, and this is known as angle of emergence, angle E. So this is the refraction. Now refraction के कुछ laws हैं. First of all, incident ray, refracted ray and normal, they all lie in same plane, and the light ray goes from when the rarer to denser medium. Rarer means जैसे air है और denser जैसे glass medium है. It bends towards the normal means angle of refraction smaller होगा. And when the light ray goes from denser to rarer, it moves away from the normal. Third law is, this is also called Snell's law. That sine of angle I upon sine R that is always a constant quantity. और ये constant quantity क्या है? That's equal to refractive index and it is represented by 1 mu 2. That is refractive index of second medium with respect to first medium. अब refractive index क्या है? This is simply the characteristic of any medium. Means it tells that how much that medium is different from the rarer when the light enters from air to that medium, and it's equal to speed of light in vacuum upon speed of light in medium, and this is equal to speed of light as you know represented by c, and speed of light in any other medium that is represented by v. For example, we take the refractive index of glass with respect to air. So this is simply equal to speed of light in vacuum upon speed of light in glass. And similarly a mu w, refractive index of water with respect to air. And this is c upon vw. Means refractive index एक ratio है.
it is the ratio of the speed of light in air and to the speed of light in that medium. That's why it has no unit. कोई unit इसकी नहीं होगी. Now again coming back to the previous diagram. This KL is incident ray and MN is emergent ray. We will prove that this emergent ray will be parallel to the incident ray. कैसे? At L रे जो है एयर से कहाँ आ रही है? ग्लास में. तो ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर वन. नाउ एट एम रे कहाँ से? ग्लास से एयर में जा रही है. तो जी म्यू ए दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास एंड दैट्स इक्वल टू साइन आर टू अपॉन साइन ई. अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ए म्यू जी किसके इक्वल हो जाएगा? साइन ई अपॉन साइन आर. बाय दिस 1 and 3 वी कैन से दैट दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल. But R1 and R2 are equal. These are the two alternate angles, and that's why sin I equal to sin E and I equal to E. So it means KL is parallel to MN. Now we will prove कि why the bucket appears shallower. Means bucket की जो real depth है और जो हमें apparent दिखती है both are different. Suppose this is air and this is water. और ये बकेट का बॉटम है. बॉटम पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ओ से चलने वाली रे एक ओ ए जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है सरफेस पर और एयर में जा रही है तो इट विल गो स्ट्रेट. एक रे और जो यहाँ पर बी पर इंसिडेंट हो रही है. हियर वी हैव ड्रॉन नॉर्मल एंड दिस एंगल इज आई एंड नाउ द रे इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर. तो डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर में. इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो एंगल आर विल बी ग्रेटर. अब ये दोनों रेज after emerging out they appear to come from this point I. तो I क्या हुआ? I is the image of O. तो जो हमें ऑब्जेक्ट O था वो हमें I पर दिख रहा है. इट मीन्स ये आपकी रियल डेप्थ थी X. तो अब हमें दिखाई इतनी दे रही है अपरेंट डेप्थ ये Y. नाउ हाउ वी विल प्रूव? वी विल सी दिस एंगल इज I. तो ये एंगल भी I होगा, ऑल्टरनेट एंगल. ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इन दिस ट्राइंगल in the triangle OAB sin I किसके इक्वल होगा? AB अपॉन OB. सिमिलरली इन द ट्राइंगल AIB sin R इक्वल टू AB अपॉन BI. तो हमें मालूम है कि A म्यू W किसके इक्वल है? साइन A म्यू W मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर. पहले एयर आया तो पहले एयर का एंगल साइन R अपॉन साइन I. तो साइन R अपॉन साइन I की अगर हम वैल्यू रखेंगे तो इट विल कम टू दिस OB अपॉन BI. Now we can take any two rays. B point A के काफ़ी पास भी हो सकता है. If B point is very very close to A, तो जो आपका OB है तो will be nearly equal to OA और BI is nearly equal to OA. तो putting these values, तो that will become equal to X upon Y. तो A mu W equal to किसके हो गया? Real depth upon apparent depth. And Y apparent depth is equal to X upon A mu W. अब हमें मालूम है कि म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो दैट्स वाई वाई इज ऑलवेज लेसर देन एक्स. दैट इज अपरेंट डेप्थ इज ऑलवेज लेसर देन रियल डेप्थ. नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ सैम्पल प्रॉब्लम कि उसमें था इट्स इन योर बुक स्टूडेंट्स. एक ओ इज द इंक स्पॉट विच इज अंडर द ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब जो है 10 सेंटीमीटर थिक है एंड वी आर व्यूइंग इट फ्रॉम हेयर. And now ink spot will appear to shift little bit upward. क्यों? इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और रियल डेप्थ कितनी हुई? 10. तो नेचुरल है इसकी अपरेंट डेप्थ कितनी होगी? दिस वे एक्स अपॉन म्यू. तो ये आपको ग्लास जो इंक स्पॉट है ये आपको यहाँ दिखाई देगा कितना? 6.67 सेंटीमीटर नीचे. हाउ मच इट राइजेस अप? दैट इज 3.3 सेंटीमीटर. तो इन दिस वे एवरी ऑब्जेक्ट अगर ग्लास स्लैब से देखेंगे तो इट विल अपीयर टू रेस्ट लिटिल बिट अप. देयर इज द एग्जांपल ऑफ कॉमन कंपाउंड प्लेट. ये आपकी कंपाउंड प्लेट है. यहाँ पर मीडियम ए है, फिर मीडियम बी है, फिर मीडियम सी और फिर मीडियम ए है. तो हर मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. दिस इज द इंसिडेंट रे. यहाँ से बेंड होगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है. यहाँ से फिर बेंड होगी बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है. यहाँ से फिर बेंड होगी बिकॉज अगेन द मीडियम इज चेंजिंग. So these are the alternate angles. Naturally they will be equal. So we can say at the point A
तो व्हाट इज ए म्यू बी कैसे ले सकते हैं हम, साइन आई अपॉन साइन R1। सिमिलरली एट द पॉइंट बी एंड एट द पॉइंट सी, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इट कम्स इक्वल टू 1। तो इन दिस वे वी विल सी दैट बी म्यू सी इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू बी इंटू सी म्यू ए, और सी म्यू ए उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए म्यू सी आ जाएगा। तो ए म्यू सी अपॉन ए म्यू बी मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, एंड दैट्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेटर वन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रीवियस वन। फॉर एग्जाम्पल हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे ही वाटर का पता है। तो अगर हम ये पता लगाएं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो दैट्स इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। इन दिस वे इट कम्स आउट 9 upon 8. Similarly, we can find out G mu W. And rest phenomena we will discuss in the another video. Thank you.